आज का विशेष दिन है। वैद्यो नारायण हरि माने भगवान का बाद में ही हम सब लोग जानते हैं डॉक्टर ही भगवान है, क्योंकि हम मंदिर में जाने के बाद में भी जब हम बीमार कुछ होगा तो याद करेंगे फर्स्ट भगवान एंड सेकंड डॉक्टर, मगर वो जल्दीबाजी में सब भूल जाएंगे, डॉक्टर के पास ही दौड़ेगा। तो इसलिए वैद्यो नारायण हरि कहते हैं। इस संदर्भ में आज विशेष पूर्वक से हम डॉक्टर्स को आमंत्रित किया है और हम सब जानते हैं कोरोना समय पर जितना योगदान किया है, कितना परिश्रम हुआ है, उसको हम सब डॉक्टरों को भा रही है। तो इसलिए आज आप सबको स्वागत करते हुए सबसे पहले आज का हमारा बीच में सभाध्यक्ष है डॉक्टर भास्कर सर है, ये फर्स्ट सीएमडी ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड, आज तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का चेयरमैन भी है। तो हम पहले मिस्टर भास्कर सर को स्वागत करेंगे। वेलकम सर, तालियों से स्वागत कीजिएगा। इज बहुत महत्वपूर्ण, हम बहुत बार आपको मिल चुका है, इनका योगदान हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं। और आज के दिन में हमारा मुख्य अतिथि है डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रकांत साहब, प्लीज वेलकम सर। हर दिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी कितना काम करता है, इनका साथ साथ इन्होंने अपना मीडिया ये जो वैद्य के लिए बहुत कोशिश कर रही है। मैंने बहुत बार देखा हूँ, इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आमंत्रित करेंगे आज डॉक्टर धनंजय साहब, वेलकम सर। हम लोग अनुरोध करेंगे आज इस कार्यक्रम ज्योत प्रसन्न का Running a chain of clinic for the spine care and arthritis. It's a unique cold laser technology. It's called Rainbow Regenerative Cold Laser Technology. For the last 16 years, I'm practicing in South. Now the very first clinic opened in Delhi with the blessings of my mentor guru, Dr. Chandrakant Sambhaji Panda, who is next to me, under his leadership we opened up. And any pain, we can avoid surgery and injury. If anybody has got any doubts about the surgical intervention, you can always call us, contact us. And out of the entrance, we have kept all the brochures. Whoever interested, you can pick it up. Thank you, and once again, the Doctors' Day greetings to all my colleagues and all the doctors whom I know, whom I do not know. I bow my head to you for the selfless service to the human world. I am called Dr. Chandrakant Sambhaji Pandey. I spent 45 years at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. 45 years. I am called the iodine man of India because primarily in my career I focused on iodine deficiency disorders. The single most important cause of preventable mental retardation is iodine deficiency. I have written 650 research papers and 100 books and reports. And I became a doctor by accident. I could not pronounce the word engineer in the school debate. So teacher said, "I'm Doctor Banja." That's why I became doctor. I'm Bhaskar Rao. I'm sitting here with a little bit of undueness amongst my senior people like you. I'm sitting here as somebody unknown amongst the doctors. I'm not a doctor. I'm only an engineer.
engineer. He said, I'm an engineer and I'm from AP, from Kakinada University, Andhra Pradesh, from the Andhra Pradesh, Kakinada University. I'm going there for Silver Jubilee, and that is on 14th or 15th. I'm from Kakinada. I have become Maruti as managing director. Maruti has, the government has pulled me up to become one of the members of the Public Enterprise Selection Board. Then to become the chairman of the Public Enterprise Selection. And then I have joined some services like public sector or private sector services as independent director. And I have taken retirement after 80. When I become 80, I said thank you very much. I said I am not going to work anymore. I am We are driving Maruti car on the roads today. The Maruti Udyoga chairman was he, one among the Sanjay Gandhi and himself. The car what India is manufacturing, what we are driving, the credit goes to him. Degree of the doctorate is only a certificate. The contribution to the human world and automobile world, what he has done, Bhaskar. We are hats off to you, sir. Thank you so much. I have been driving only Maruti car in my life. Thank you. Thank you very much, sir. The doctor is not a small joke, small thing. He is a lot of effort. Vaidyo Narayana Hari is the next living God on the Vaidyo Narayano Hari. In that Narayana also, Vaidyo Narayano Hari. You know Hari? You know most of you know Hari. Hari Narayana Hari. One of the Hari is also called definitely, and you are all. Dear Patil ji hai. Please welcome sir. Please sir. Welcome to the dais sir. Please. He is also a very close and in the UNO, United Nations Organization. Please come sir. आइए sir. Welcome sir. Please. मैं धनंजय कुमार और मैं डॉक्टर एजुकेशन वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन भारत के टॉप 10 फाइटो साइंस में आयुर्वेद में काम करने वाले मैं अकेले हूँ। और भारत ही नहीं बल्कि देश के लगभग 14 देशों में हम आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा हमने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है। और आप सबके आशीर्वाद से ऐसा रहा कि लगभग 1.5 लाख लोगों को हमने कोरोना से बचाया, भगवान की कृपा से और अपने रिसर्च से। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रिसर्च जो चल रहा है JNU के साथ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ, कैंसर पर। और सर आप सबके आशीर्वाद से हम 75% सक्सेस पे हैं। और आयुर्वेद अभी 24/7 नहीं है, जिसको हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है, जिसको सारा हैंडल करते हैं डॉक्टर धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर जी से भी निवेदन करूंगा कि एक बार खड़ा हो जाए। और इनके रिसर्च से एलोपैथ के जैसा तुरंत काम करने वाले बहुत सारे मेडिसिन हमने रिसर्च किया है, जिसकी संख्या लगभग 150 है। इसके साथ ही मैं आदित्य नारायण जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें बुलाया। हमारा बीच में डॉक्टर मैडम है। अपने आप मैडम परिचय देना है, क्योंकि आज जस्ट इतना मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए। Namaskar and good evening everyone. I'm Dr. Tapaswini Pradhan and I work as a head and neck cancer surgeon at the Apollo, Indraprastha Apollo and the Apollo Noida. So I was trained into this specialty from the All India Institute of Medical Sciences, and the journey with the cancer has been pretty long, I should say. It's been 22 years and it's a wonderful journey, helping patients and the family to struggle, to be part of their struggle and to be part of their journey, not just as a treating surgeon but also as a counselor and also a part of their caregiving person. Besides
my own profession, I do a lot of social activities, and that's because I feel the main treatment stay with cancer is through prevention. I think we can eradicate cancer if we know how to prevent cancer. So the lifestyle which we has changed over the years. So in this particular fight, I have been into the social media and I have spoken a lot through the radio and through the television. And with God's grace, I have a program in my own name, and that's called the Dr. Tapaswini's Corner. This was the Prime Minister's venture, Prime Minister Narendra Modi Sahab's venture. This is the program called Arogyavani. And I was selected from India to be the host of one of the programs. Viewership has increased over the time. I have a viewership of around 1 lakh plus people following me. Really enlightens you about various different types of cancer that you can be faced with. You may not be one of the victims, but you may have some family members or your neighbors. So let's all together join hands to fight this disease. And the other is, if you are aware, it's only then can you make other people. So it's a chain reaction. So join in with this program, Dr. Tapaswini's Corner, and it'll be a great honor if I see more and more followers and viewership increasing. My name is Dr. B.R. Patil. 50 साल पहले हमने अमेरिका में जाके गलती किया, PhD किया, लेकिन पूरी दुनिया में काम किया, साउथ एशिया में और कंट्रीज, लैटिन अमेरिका में और कंट्रीज, यूरोप में सब कंट्रीज में, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WHO, ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव वर्क गाँव-गाँव में घूम के गरीब लोगों के घर में जाके हमने काम किया है और रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। मुझे भी याद नहीं कितना है और ये मुझे सौभाग्य मिला कि आप लोगों से बैठने का सुनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सिको का काम करते हैं और लगभग कैंसर के 45 से 60% जो है हमने ठीक किए हैं, जो 3rd और 4th स्टेज में थे, और आने वाले टाइम में फाइटो टेक्नोलॉजी से हम 90% जो है कैंसर के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सभी लोग आप यहाँ पे आए हैं और आज ये जो बेसिकली आज का जो दिन है ना 1 जुलाई, ये हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है। मैं बेसिकली और मेरा हिंदी का और न्यूज चैनल है, उसका ऑनर हूँ मैं, तो मीडिया डे भी आज। और बेसिकली तो 1 जुलाई एजुकेशन डे है। हम सबने जब स्कूल जाना शुरू किया, हर बार कॉलेज नया सेशन ही 1 जुलाई से शुरू होता था पहले। तो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है विज्ञान भवन के अंदर, और दूसरा प्रोग्राम हमारा नोएडा के क्योंकि मैं चेयरमैन रहा पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का, वकीलों का भी मैं इंटरनेशनल को चेयरमैन हूँ। लेकिन जब मनीष गवई जी ने कहा कि आज डॉक्टर्स को बुलाना है, आइए मैडम, तो मैंने सभी डॉक्टर्स को, कुछ और भी आ रहे हैं अभी, आलोक मिश्रा जी हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया बिना IAS के, क्योंकि वो एम्स के अंदर डॉक्टर्स थे। तो पद्मश्री जिनको आयोडीन मैन कहा जाता है, हम सबकी जो हेल्थ है वो आपके पांडव जी की वजह से है। जब आदमी अपने बारे में बताता है तो बहुत थोड़ा बताता है। तो मैं केवल यही कहूंगा, या येषु सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुष निर्माण तदेव शुक्रम तदेव सत्यम तदेव अपराध मुच्यते। सोते हुए में से कुछ जागते हुए लोग इधर भी हैं और इधर भी हैं, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हमने इतनी 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन के बावजूद इस कोरोना पे विजय पाई है, उसमें से दोनों तरफ के लोग हैं, इधर भी और उधर भी। मैं कई बार कहता भी हूँ कि हम में से कुछ लोग अभी भी वो कह रहे हैं उनको बदलना पड़ेगा, गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, एक जमाना बदलेगा। इसके साथ ही मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस डॉक्टर्स डे के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की वजह से ही हम लोगों की हेल्थ जो है जिंदा है। सबसे यही कहूँगा, आप सब आए, हम सोच रहे थे बारिश हो रही है लेकिन हॉल पूरा भरा हुआ है, तो हम केवल यही दुआ कर रहे थे कि बारिश से भी इन देवता बरसो, लेकिन इतना ना बरसो कि ये आ ना पाए।
लेकिन जब वो आ जाए तो इतना वर्षों की ये जा ना पाए। तो हमारी बात मान ली है। तो अब हम ये जो है ना, अभी मेरे को आप सबसे ही पता लगा डॉक्टर पांडव जी से कि जो मेडिकल है, दवाइयाँ है, वो एक बहुत थोड़ी सी चीज है, क्योंकि हेल्थ के लिए म्यूजिक, आपस में हंसना। तो कई बार हम लोग पूछते हैं, तो अभी मैं पूछ रहा था किसी एक उसके अंदर सीए वाले में कि 2 और 2 कितने होते हैं? आप बता सकते हैं 2 और 2 कितने होते हैं? देखिए ये लगता है ये बीजेपी के हैं, हमारे आपके गुप्ता जी कहीं इनकम टैक्स से मिले हुए हैं। हमने 2 और 2 पूछा, तो डॉक्टर से पूछा 2 और 2 क्या? बोले भाई सारे टेस्ट करने के बाद में हम बताएंगे, मशीन बताएंगे। एक इंजीनियर साहब से पूछा, तो क्या उनने कंपास घुमा दिया सारा, बोला इट लाइज समवेयर बिटवीन 1.982 3.982 4.02। फिर हमारे राजकुमार जी जैसे सोशल वर्कर से पूछा, वी विल फॉर्म ए कमेटी, वो अपनी रिपोर्ट देगी 1 हफ्ते के अंदर कि 2 और 2 कितने होंगे। फिर एक इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब थे, बोले आई नो 2 और 2 इक्वल टू 4, बट प्लीज शो मी व्हाई इट शुड नॉट बी टेकन एट 22। ये 22 क्यों ना माना जाए, ये शो कीजिए। फिर अब वो आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, बोले भाई 2 और 2 कितने होते हैं? हमने कहा बंद कर दो ये दरवाजे, अब ये बताओ आप चाहते कितना उतना बना देते हैं। तो क्या होता है, अभी एक मेडिकल की कॉन्फ्रेंस करी हमने रेडिसन होटल में। तो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, बड़े हॉस्पिटल में। बोले हम डॉक्टर से लोग लाइफ बचाते हैं। हमने कहा आप कितनी लाइफ बचाते हैं? लाइफ तो हम बचाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जितने एक्सीडेंट से नहीं मरते उतने इस फाइनेंशियल हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब होता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से। तो बी आर द सेवर ऑफ। तो आप इस सेंस में हमें भी डॉक्टर्स कह सकते हैं। हालांकि पीएचडी की डिग्री भी मुझको है, मैं सीए, सीएस, एलएलबी, और जैसे पाठक जी के मैंने आज बायोडेटा पढ़ा, तो मैं भी 4 प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, 4 राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, उसके अलावा लंदन, चाइना, वियतनाम और थाई लॉयर्स काउंसिल का भी मेंबर हूँ, और वहां से भी अवार्ड है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये जो डॉक्टर प्रोफेशन है, इसको थोड़ा होलिस्टिक भी है। अभी जो नेगेटिव है उसकी जगह ऐसे डॉक्टर्स भी आए हैं जो प्रिवेंटिव। तो अभी तक जो ऑल इंडिया मेडिकल्स की हमने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेगेटिव हेल्थ है, जब कोई बीमार पड़ जाए तभी हम इलाज करते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जो मेडिकल के अंदर, अब जो वेलनेस सेंटर्स की बात हो रही है, तो पॉजिटिव हेल्थ की तरफ भी हम लोगों को आगे होना पड़ेगा, और इस पे पेटिशंस वगैरह डालनी होगी। मैं ये बात कह के आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर्स डे की। विधानचंद्र रॉय जो थे, उनके याद में 1991 से ये नेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है। आज हमारे को 30 साल हो गए डॉक्टर्स डे को मनाते हुए, और इस क्योंकि 30 होने के बाद में अब हम ये समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान के मेडिकल का इस 30वीं या 31वीं डॉक्टर्स डे पे डंका बज रहा है। हमारी इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत, क्योंकि आप सबने ये सोचा कि पहले विदेशों से मंगाते थे, लेकिन वैक्सीन यहाँ बनी, डॉक्टर्स ने जो काम किया, तो मुझे को उसमें याद आ गया है कि मैं किसी और से क्यों अपनी खुशी मांगू। मांगी हुई खुशियों से कब किसी का भला होता है? जो किस्मत में लिखा होता है या जो मेहनत से मिलता है, वो हर हालत में अदा होता है। तो आप सब डॉक्टर्स की जितनी मेहनत है उसके लिए बहुत बहुत सलूट, और थोड़ा सा रंगत आ जाए जो कि पॉजिटिव हेल्थ के लिए जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर्स कोई है तो सभागार में परिचय दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स का दिन है, तो मैं डॉक्टर लोगों से अनुरोध करूंगा परिचय दीजिए। After this pandemic time, all this order is going on. So you might have heard about the cardiac arrest. So we have started a drive about the cardiac arrest and the CPR training at the workshop. So I started the page Wealth is Health.
So why it is wealth is health? Because our greatest wealth is our health. ये हम सबको समझ में आया. So जब हम लोग ये सब कुछ कर रहे थे, then मुझे एम्स वाले लोग मिले and they are also doing the same thing, but they have started this one more thing. If someone from the AIIMS, so we are going to Mission Delhi is कि they have a bike ambulance or they have a number 14430, 4 lakhs rupees. They did not even charge 4 rupees. So you all must know कि they are doing, if it उसके pamphlet में लिखा हुआ है treatment ECG at your doorsteps. I think इससे ज़्यादा गवर्नमेंट हमें क्या दे सकती है. So we all are together now. मतलब उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, हम लोग इकट्ठे सब कुछ कर रहे हैं. And this is just मैं जो कुछ कर रही हूँ this because as a doctor also and as a citizen also. 10 kilometers. और अभी ये लोग मतलब RML then नांगलोई वल्लभगढ़ फॉलो गवर्नमेंट का. So प्लीज आप सबको बताएं, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें ताकि पता चल सके कि किसी को भी देखिए चेस्ट पेन कभी भी हो सकता है. And after the heart attack, although I am a dental surgeon, बस समझते समझते that being a doctor, so I just can tell कि after heart attack 1 hour is the golden period, and after the cardiac arrest you have just a 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes, maximum 10 minutes you can save the patient. The next news was if the CPR would have given, he would have saved. तो CPR क्या होता है? So I think वो आप एम्स वालों को I am associated with the Indian Red Cross Society and the St. John Ambulance, वो सब मेरे से जुड़े हुए हैं. And I have a डॉक्टर कविता त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल. तो वो आज आ नहीं पाई. तो हम सब आपस में काम कर रहे हैं. वी आर ट्रेनिंग पीपल ऑल्सो कि कैसे कैसे हम लोग CPR देके पेशेंट को बचा सकते हैं. तो जैसे कोलैप्स होता है एकदम से पेशेंट चला जाता है, बट जो दिल है वो जिंदा रहता है. This is a multi and super specialist hospital. हम लोग 2 नए अस्पताल और लेके आ रहे हैं. मैं वैसे पीडियाट्रिशियन हूँ, my wife is also pediatrician. हम लोगों ने कोविड में जब सारे कोविड हॉस्पिटल थे तो एक हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल था, तो हम लोग नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे और साथ में जो कोविड पेशेंट थे उनको घर में होम केयर देते फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑक्सीजन देना, उनको एम्बुलेंस देना, डॉक्टर्स भेजना, उनके सिलेंडर्स भेजना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजना, इवन उन लोगों को टेली कंसल्टेशन देना, वीडियो कंसल्टेशन देना. अभी भी हमारे फुल बॉडी चेकअप, फ्री कंसल्टेशन वो सब लोग कर रहे हैं. रीजन बीइंग ये कि हम सबको पता है कि लगभग 70% जो हमारी मैन पावर, ह्यूमन मेडिकल मैन पावर, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारा प्राइवेट सेक्टर में कन्फाइंड है. अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया की GDP है उसका हम लोग 2.5% खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे. वो शायद इतने डेवलप्ड कंट्री से बहुत कम है. और जो हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट पे. तो जब तक प्राइवेट प्लेयर्स खुद आके सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपना हिस्सा नहीं देंगे, उनको अपनी तरफ से केयर नहीं देंगे, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन अगर हम बात करें हमारे पेशेंट्स का होता है 62% होता है. जैसे आप बात करते हैं कार्डियक हार्ट अटैक की, तो लगभग खास करके जो रूरल एरियाज है, गाँव जहाँ पे 70% आबादी रहती है, वहाँ पे 20% बेड्स भी नहीं है, 20% डॉक्टर्स भी नहीं है. और वहाँ पे लोग अपना घर बेच के, अपना जेवर गिरवी रख के इलाज करवाते हैं. जो रीजन में कि वहाँ पे प्रिवेंशन पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे. जैसे बात करते हैं वेलनेस पे काम नहीं कर पा रहे. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर. अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ. जैसे अभी हम फिर बात करते हैं हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, उसके लिए प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए हमें. चाहे फ्री ओपीडीज करनी हो, फ्री कंसल्टेशंस करनी हो, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स करने हो, हेल्थ टॉक्स करनी हो, CPR एक्टिविटीज करनी हो. हमारे जो टीम है, हमारे पास BLS ट्रेंड टीम है जो CPR एक्टिविटीज फ्री करती है. जो जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जितने वॉलंटियर्स लोग हैं, बहुत सारे सोसाइटी में वॉलंटियर्स होते हैं. तो अगर हम सब लोग मिलकर इस तरह कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे तो शायद हम जो हेल्थ है, देश की हेल्थ है, एक्चुअली उसको हम अच्छा कर सकते हैं. और सब डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे, CA को हैप्पी CA डे, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. तो CA और डॉक्टर्स दोनों सोसाइटी के लिए बहुत ही आवश्यक है. थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर राजीव वशिष्ठ, पोस्ट MBBS. I had an MD from Hospital Administration AIIMS. I had my junior residency and senior residency from AIIMS. After that, I started my own setup. I have a chain of clinics in the name of Second Opinion in Lajpat Nagar. Also running chain of pharmacies in the name of Pharmas Merimart. Basically, why I had kept my clinic name is Second Opinion. After working in AIIMS for almost more than 8 years, we had realized, we have a long waiting time for people come to AIIMS just to take a second opinion, right? They want to have a perfect diagnosis. And being a pass out from AIIMS and being AIIMSonian, we do know that AIIMS, we all have a faith on it. That's why I think with every election in any state, they announce the name of AIIMS, right?
So that's why even my clinic, we are around a group of 17 doctors, all are Amsonian, and we had kept our clinic name as a second opinion. So anybody can spread the word. So they all are the doctors from AIMS who are professors retired, or even a few of the directors who are retired from AIMS, they also join me. Thank you, thanks a lot, everybody, to all the docs, happy Doctors Day, and to all the CAs. Thank you, thanks a lot. Working as senior medical officer in Municipal Corporation Delhi. My regard to the society during COVID was I was able to speak to 200 to 400 patients per day through Zoom meetings, through WhatsApp, through phone calls. So I was also being affected with COVID in second wave. And when I was in ICU also, I made so many people educated regarding the COVID. And I'm having 2 years child, and my wife is also doctor. We kept our child in my hometown because we both are working in COVID. So it was an opportunity to serve the society, and thank you, sir, for it. Dr. Priyanka Bhatti, and I'm a dental surgeon as well. I'm not as experienced as you all are, but I have worked with 2 government hospitals as per now, and I have participated in Upyukt Healthcare Solutions. They conduct camps in schools, government schools, and they spread awareness about oral health and everything. So because of this COVID times, nobody is aware that people are only thinking about the chest pain and everything, but the oral health care is also very important in the COVID time. So I would like to ask you guys, please look after yourselves and look after your oral health. It is as important as the chest pain. बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम रितेश है, मैं प्राकृतिक चिकित्सा में काम करता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा से हम लोग काम करते हैं, इसमें बिना दवा के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें से बहुत सारे अपना माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल, साइटिका, बैक पेन जो भी होता है रिलेटेड, बिना दवा के हम लोग इलाज करते हैं। और इसी से हम लोग कैंप के माध्यम से अवेयरनेस का काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को हमारे सामने बहुत अच्छा दवाई है और बिना दवाई है, और उसके बाद में जड़ी बूटी है, साथ साथ में अपना होम्योपैथी है। सारा दवाई एक डॉक्टर के नाते अपना आम जीवन में अच्छा होने के लिए। और डॉक्टर्स मैडम प्लीज। First of all, I have all the best wishes to all the doctors who have come here to attend this Doctors' Day celebration. I'm more happy to be here today. I work as a resident medical officer in Andhra Bhavan. Since last COVID, I've been working in Delhi, and I'm also the medical officer to the CM and Governor of Andhra Pradesh. Since COVID, it really opened a lot of way for us to explore our strength. We never knew that we were having so much strength and potential inside us to work so much for humanity in spite of all the shortages, issues, and we all know the tough time Delhi was facing, especially during that time. So I pray that God will give more energy, more strength and stamina, and long life to all our doctors, so that they will serve humanity in a much better way, so that we don't lose our ethics. At the same time, we work for the welfare of people. Thank you so much, Adalila Foundation, for having me here. Thank you once again. Happy Doctors' Day to everyone who are sitting here. I think among all the people sitting here, I think I am the junior most and the youngest one. I am senior resident MD medicine working in RML hospital. And my experience in COVID times is, as a resident, I worked in isolation for about 3 to 4 months. And our duty hours would be like, we used to work for about 16 to 18 hours continuously wearing the PPE. And the pressure we had during the times, exclusively during the second wave, was very, very hard. And thank God, I think those days won't repeat again, and patients get more care. Happy Doctors' Day to everyone. I am Dr. Rama Sankar Singh, running a pain management clinic in Kalkat. My experience was very tough during COVID time because I have a chain of clinic and I was running all the clinic. Even at that time, I hired some vehicle from my friends who was running. That vehicle was providing like an ambulance. I tied with lot of hospitals because I used to go to lot of hospitals. So there was especially for emergency, because I can say a small story. There is an old doctor, I think he was 82 years old, and he went to the hospital. I think 30 साल पहले he was working in that particular hospital, and then people refused to
take his admission. He was in very bad condition. His family member was literally creeping. Being as a doctor family, they called me up at night 1 o'clock and they said, "Doc, my father will die if you people can't help him." Then by God of grace, you can say by Almighty grace, I help him out. I managed one bed in Greater Noida. Some hospital was there, NMC, I think NMC hospital was there, and we saved his life. So see, we used to do lot of work for the society, but yes, God is always there to help us. But when there is will, there is way. Because your information is required, sir, here, so that all can understand and all can know about it. Please, you can come inside, friends, sir. See, Adilila Foundation, established for the past 25 years, lakhs of people. And people are in a queue to get the oxygen and remdesivir and other items. So, our members of the foundation throughout the India served a lot and served the people. It is God's great, we got the opportunity to work for others. So, everybody has to come forward, and if they do seva, we can prevent everything. And we cannot forget those 2 years, and everybody know about all those things. Even we have lost our own doctors, friends, relatives also. Even doctors also. They have to save the people, but due to their seva, they have also got to the God. Distinguished guests on the dais, and all the ladies and gentlemen, and my dear fraternity doctors, and all the media fraternity. Today is a very combination where we can celebrate a Doctors' Day also, Chartered Accounts Day also, Media Day also. What a combination. Please give a lot of applause to all the Chartered Accountants, all the media people, all the doctors. And more than anything, there are many celebrations. But taking out the time, today is the Doctors' Day. All the doctors are busy in the hospitals, taking care of the patients also. At the same time, celebrations is going on, and the camera, media is also busy. I think most of the celebrations happening across the country for the Chartered Accountants ceremony events, as well as the Doctors' Day. Then the media people, as it is, even though it's a media day, they cannot do their own media celebration. What a combination and what a sacrifice they do. Please give a lot of applause to the media people. See, as we are here to see that there is a new dimension coming under the present Prime Minister Narendra Modi's leadership. The government was spending 90% of the revenue on the curative care only. Nobody has ever thought of the prevention is better than cure. Now the preventive medicine is equally important. Vedic medicine and Ayurveda, the Indian, especially what our Ayurvedic acharyas, whatever we have been practiced all this year, even the overseas is also taking the cue out of your India. But we being always gar ka murga dal barabar, because we never practice our Ayurveda, we never take the importance of the Vedic medicine. Now I have seen very rare people, there is a wide divide between the allopathy practitioners and Ayush practitioners. I am proud to say that Dr. Chandrakant Sambhaji Pandya, who has started 1 year back, Global Integrative Healthcare and Wellness Research Institute. He wanted to bring the similarity and the bridge between the allopathy and alternative medicine. Because every stream of medicine has an importance. Only thing is the diagnosis, the right time diagnosis, and the doctor or any healers should understand what is the root cause of the diseases. You are medical intervention where the accident and trauma is there. That time that even surgical intervention is also there. But all practitioners cannot treat all the diseases. Your own body as to the stomach, he will never offer you the good food. Do you all agree with me? If you don't know the science, if you don't know see what we are practicing, what we are doing, it is a science. What we have learned, what the doctors are, it is science. So whenever we preach or whenever we speak with the patient, we must have as Dr. Sambhaji Pandya always put, the empathy, the passion, the compassion, the sympathy. All this should be with the doctors and the healers. When a doctor seeing 150 OPD in a day, everybody cannot give that time. Probably depend upon the patient need. I think we must talk to the patient more than 5 minutes.
Because we only see that what is the problem, headache is there, or constipation is there, we write, we do the prescription. No. Today, more of the doctor shopping is being done by the patient also. The prescription therapy is going on. No. According to the need of the patient, give him a space, give him the time. And today, now most of the patients are Google Guru. They listen to Google Guru, they come and do the test with us, they start talking to us. That is also there because of the young generation. But you know, health is the only wealth. Health is the only wealth. Why I say I lost my doctors, or my colleagues, or my seniors, we could not save them. Money could not save anybody. There was no oxygen, there was no beds. So like this situation is there. First of all, we are all living in the human world. Let us respect each other. More than a immunity, the humanity is required. I think today the entire hall is being filled up with the humanity. I thank you each one of you. I bow my head to each individual who has given time for the Doctors' Day celebration. Not somebody photo. I think, would you like to introduce yourself, sir, to the audience? से सृजनता से काम करने का धैर्य आदरणीय गनी महाराज जी में खुद वह आदिवासी संस्कृति सभ्यता के परिचायक है, संशोधक है और अपने माध्यम से शिक्षा के माध्यम से उनके आर्थिक रोजगार के माध्यम से महाराज गुजरात में एक आश्रम चलाते हैं जिसके माध्यम से आज आदिवासियों के बीच में सचेतना का माध्यम और सचेतना की मूल विकास की धारा को पहुंचाने का काम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र गनी महाराज जी कर रहे हैं। मैं महाराज जी का जोरदार तालियों से यहाँ स्वागत करता हूँ क्योंकि दो शब्द आप अपने बारे में अपने इधर तालियों से स्वागत कीजिएगा। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सुखी परिवार फाउंडेशन पहले जैन सन्यासी जैन मुनि पिछले जब गुजरात में आदिवासी समाज के लिए जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वहीं पे मेरा जन्म स्थान है और आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए कई आंदोलन किए। विशेष करके मैंने अपना जीवन 35 साल तक पद यात्रा में निकाला, 35 साल तक। और उसके बाद में जो है गुजरात में जब स्थितियाँ अलग तरह से, जब गोधरा कांड वगैरह का जब ये हुआ और उस दरमियान जो है मोदी जी को सबसे पहले सपोर्ट देने वाले में से मैं और 6 लाख आदिवासियों को हमने इकट्ठा करके मोदी जी की सबसे बड़ी रैली कराई थी और उस रैली में भारत का विकास कैसे होना चाहिए, आदिवासी समाज से लेकर के सभी समाजों का कैसे अच्छी तरह से उसका ये होना चाहिए। मैंने अपने जीवन काल में साहित्य की यात्रा की 28 पुस्तकें मैंने लिखी है और जैन दर्शन का जो अहिंसा की जो संस्कृति है उस संस्कृति को अपने जीवन में भी उतारा, समाज के अंदर भी उतारा और खुद जन्म से भी मैं ट्राइब्स हूँ, जन्म से भी मैं ट्राइब्स हूँ, आदिवासी हूँ और आदिवासी की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को बड़े नजदीक से देखा और जैन दर्शन के समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा और उसके समाधान के लिए मैंने अपने आप को एक बहुत अच्छे संन्यास के सिस्टम से लेकर के एकदम गली के स्ट्रीट तक कार्य करने का मेरे जीवन में जैन दर्शन में कहते हैं कि क्रांतिकारी सन्यासी नाम मेरा आता है। एक धारा से हट करके काम करना, एक व्यवस्था में बंद करके काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए हमने भारत भर के अंदर जो है 18 स्कूल चलाता। मैं खुद श्रमण हूँ, श्रम करना जानता हूँ। जिस समय में भारत के प्रधानमंत्री समय में, उस समय में वो मुख्यमंत्री थे, तो उस समय में जब आदिवासियों की सारी स्थिति को देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई एक अच्छा आश्रम बनाना चाहिए। मैंने कहा मैं तो खुद यहाँ पे कहीं बैठता नहीं, मैं तो श्रमण हूँ, मैं श्रम करता हूँ।
इनके घर में जो रोटी बनती है वही मैं खाता हूँ, मेरे को स्पेशल खुद भी बनाता नहीं। तो इनको उनके घर में अच्छी स्थिति बन सके इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन का आधार है। पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और आदिवासियों में एकलव्य की जो कहानी आप सब जानते हैं, जब अंगूठा कट गया उसके बाद में जो है, जब वो रोटी नहीं पकड़ सकता या कलम नहीं पकड़ सकता, मेरे थॉट्स है कि रोटी भी जब आपका अंगूठा होगा तभी आप कलम को पकड़ सकते हो या रोटी को भी पकड़ सकते हो। तो आदिवासी समाज के अंदर व्यसन की परंपराएं क्यों है? क्योंकि जब उनके पास में अशिक्षित परंपराएं रहेगी, उनको पढ़ने का सिस्टम नहीं होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होगी, और थोड़े से छोटे से लालच के अंदर ऐसे समाज जो है वो निर्भीक और स्वतंत्र परंपरा का रहा हुआ है, तो उनमें उस स्थिति को डेवलपमेंट करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे क्षेत्र में, नक्सलाइट क्षेत्र के अंदर भी अहिंसा की स्थिति को ले जाते हुए वहां पे हमने 2.5 लाख आदिवासियों को, वहां की जमीन ऐसी है तो 2.5 लाख गोवंश किसानों को मैंने दिया। 5 लाख हमने पौधे लगवाए। जल, जंगल और जमीन, उन तीनों चीजों के ऊपर काम करते हुए आदिवासी की सभ्यता और संस्कृति को एक आधुनिक पूर्व की संस्कृति को याद करते हुए आधुनिक ढंग से विकास करने का माध्यम बनाया। आम के पेड़ है, दूसरे पेड़ है, ऐसे आम्रकुंज विद्यालय भी हमने बनाए। कुछ सन्यासी साधु संत मेरे साथ में थे, तो उनको भी हमने ऐसा एक माध्यम बनाया जो 25-30 लाख रुपए जो है वो आम के फल से प्राप्त होते हैं। तो उसका वो पैसा जो है 25-30 लाख रुपया आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए, तो एक नया कि आम के द्वारा भी जो है हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मोदी जी से अभी अपना द्रौपदी मुर्मू का जो प्रेसिडेंट बनना खुशी की बात है। आई थिंक ये आपके लिए विनिंग पॉइंट है। अच्छा, ये जुलाई में ही गुरु पूर्णिमा है, 13 जुलाई को, हमने आज 1 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा। भारत देश की संस्कृति और सभ्यता हमारे साथ लेके चल रही है, और उसी के पद पर डॉक्टर राजेंद्र जी यहाँ पे जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु है उनके माध्यम से कर रहे हैं। मैं उनको उनके विधायक कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और फिर से एक बार इस प्रोग्राम में पधारने के लिए उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। In Lok Sabha, we have 1/3 of the seats for women, but your hall has 60% women and 40%. So we are on the right track. The COVID-19 has taught us one important lesson, and that is eternal vigilance is the price of safety. आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आप सोइए मत, हमेशा जागरूक रहें। दूसरी बात, I am a practitioner of public health, preventive and social medicine. It told us the importance of preventive and social medicine, and that's why the public health is gaining its importance in India. Unfortunately, so far only 90% of the budget is spent on curative and only 10% on preventive. That equation has to change. The second point, and I make it very openly, the government of India did not take the advice of public health experts in managing the COVID-19. Whom do they call? They call cardiologists, cardiothoracic surgeon, neonatologists, gastroenterologists, orthopedists. What do they know about public health? Public health is a special discipline, epidemiology, public health, social sciences, management. These are special disciplines, and that's the blunder that the government of India has taken. I'm saying this very loudly, and I've said it repeatedly. Now, today is the 1st July. It's very interesting. It's Bidhan Chandra Roy's birthday. Interestingly, he was born on 1st July in 1882, and he died on 1st July 1962. Very interesting, his date of birth and date of death is the same. He lived for 80 years. The other interesting part is, for the first time in India, Doctors' Day was celebrated on 1st July 1991. And it was on 4th February 1961, he got the country's highest award, the Bharat Ratna. I also want to tell you one important secret about Dr. Bidhan Chandra Roy. He was a personal physician to Mahatma Gandhi.
And another thing which very few people know it, the All India Institute of Medical Sciences was to be established in Calcutta. The foundation stone was also laid there. But there were differences between Dr. Chandra Rai and Pandit Jawaharlal Nehru. That's why AIIMS shifted from Calcutta to Delhi. Very people know about this history. So I'm so happy, grateful, Adi Narayan. यहाँ पे तो मंडल बैठा है, श्याम रघुनंदन, आदि नारायण, भास्कर, तपस्वनी और आखिर में पांडव है और पाटिल है। तो ये तो देवताओं की सभागृह है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा बीच में डॉक्टर के.जी. चौधरी है, पीछे बैठा हुआ है। प्लीज कम सर। आपने बहुत कुछ किया है पेन। और ये चौधरी साहब बात करने के बाद फिर साहब भी बात करेंगे और साथ साथ अवार्ड देंगे सर। सर 5 मिनट, 10 मिनट। Best treatment facility with least side effect. So that is our contribution. That's very satisfying with our dream, and that project was fulfilled with help of my wife. She contributed there, I contributed there. Yes, said everything about the pain, and my concern is only nobody should suffer from pain. Pain is such a thing which can be easily cured. Like in a crying child, you can call mother and he is satisfied. Just like that, you don't need a specialist, super specialist to cure pain. You should understand, you should know where the pain is. Of course, allopathically we have to rule out that it's not cardiac or it's neurological or orthopedic. Once that is ruled out, you should know where the pain is. And pain is conducted by the nerves. And if you know the nerves supplying the pain, like for being a woman, I always say that labor pain is the worst pain a woman has. Though as soon as the child is born, she forgets. But the suffering is so much, I give 10/10 to that pain. And that can be controlled. You know, you can have painless deliveries. It should be made mandatory to have painless deliveries. And don't blame this painless deliveries. That's an excellent, initiative, sir. I have a poem on pain. For all the happiness mankind gets, it is not from pleasure. For all the happiness mankind gets, it's not from pleasure, but it is from pain. Relief from pain. Relief from pain. For all the happiness mankind gets, is not from pleasure, but from relief from pain. Yes. And these two modern specialists is focusing more into preventive care, complementary medicine, preventive medicine. Please give a load of applause, because being a legend of medicine is accepting what both are speaking is a science. Ayurvedic is an excellent system of medicine, but it is not regulated or controlled. Like today also they have to ban one medication which are manufactured in Calcutta, which contain, they did not disclose, it was steroids there. So if anything can be regulated, that is one of the best systems. I must tell you, allopathic medicine doesn't have cure for everything. Ayurvedic medicine has more chance of curing the disease than modern medicine is. So I would only wish and pray that our system should be more investigated with evidence, and that can take, actually the present government is trying to bring Ayurveda into the national, international level. So that is what would be good. So I used, whatever the integrated system, I used modern system of diagnosing, then using therapies are least harmful, including non-drug Ayurvedic techniques, including yoga, the massages and the different systems of messages even in Kerala. So they are all therapeutic. स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज बिल्कुल आए हैं और आपने माना और बहुत से आपने 40 साल पद यात्रा की है, मोदी जी के साथ काम किया बहुत किया है। तो जो हमारे देश में अभी तक भी जो है रूरल एरिया जो है और आदिवासी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी अभी तक पूरी तरह से जो उन्नति नहीं हो पाई है। ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे, बेंगलोर जैसे शहर जो हैं वो विकसित होते जा रहे हैं और जो गांव है वहीं के वहीं हैं। 75 ईयर
आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब हम 100वां अमृत महोत्सव मनाएंगे तो वो आदिवासी जो इस फ्रंट फुट में आ पाएंगे? अभी 75 साल आदिवासियों के लिए और काम करने की ज़रूरत है। उनके लिए मंत्रालय भी बने हैं, सारी चीज़ें बने हैं, लेकिन उसके मूलभूत अधिकार जो है उनको, जैसे कि शिक्षा है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, वो अभी गांव तक पहुंचा नहीं है। उसको पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक आदिवासियों का विकास संभव नहीं है। नहीं तो ये तो हमारे देश की बड़ी विडम्बना है कि बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के हुए हैं और उनके लिए काम अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है कि हमें और 75 साल लगेंगे? जी। आदिवासियों की जनसंख्या 11 करोड़ है। 11 करोड़ के अंदर जो है, समझो आप 1 करोड़ के बीच में ही काम हो रहा है, अभी 10 करोड़ के बीच में काम करना बाकी है अभी। Any symptom in the body which persists for 4 to 6 weeks is not getting cured with any sort of a conservative management means you need to see a specialist. Please do not ignore. Why? The reason is 70 to 80% of our Indian population presents in an advanced stage. But if you were to know the various signs and symptoms of the different kinds of cancer, I'm sure a lot of people will come in the early stages, and that's going to be a bonus for all of us, for the treating physician and also the doctor. It will be a win-win situation from both the sides. And that's the reason why we should all be aware of the various signs and symptoms. So my sincere advice is, please take a lot of interest in the awareness drives which are conducted. Do not just take it lightly. These are meant for the society. A lot of people ignore, a lot of people do not take active participation, thinking that they don't mean much. But these are the various basic steps which are done to prevent this particular disease. Use time on spending your imagination and spending your brain on what others are saying. So be careful. It's the specialist who can guide you to the right path and show you the light to this particular disease. Thank you so much, and it's a great pleasure to be here today. Thank you. चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, इसमें सर्वश्रेष्ठ है। और भारत देश की बात जब करूंगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी ही सही, लहरों से टकराती तो है। तो भारत देश की हम बात करेंगे, आजादी के 75 वर्ष की बात करेंगे। जिन जिन स्वतंत्रता शहीदों ने इस देश में अपने तिरंगे के सहरान को लहराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनको भी नमन करेंगे। डॉक्टर्स का भी शहादत इस नमन में उसी भागीदारी के साथ समर्पित है। मैं डॉक्टर एक अंश के रूप में समझता हूँ और राष्ट्रीयता के इस आंदोलन में राष्ट्रीय भूमिका को मैं समझ रहा हूँ और उसी आधार के साथ राष्ट्रीयता की इस चेतना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अगर योद्धा नहीं होते तो देश में हमारी आजादी, हमारी जो फ्रीडम है वो हमारा संविधान हो सकता है। डॉक्टर अगर नहीं होते तो आप विश्वास कीजिएगा जग में क्या होता, देश में क्या होता, विश्व में क्या होता। यह उनकी सिद्धता है। घर में भी हम जब बात करते हैं, अगर घर में माँ नहीं होगी तो किस तरह का बर्ताव हमें लगता है, घर हमें कैसा लगता है। उसी तरह देश को सजाने का काम, देश को सजग रखने का काम, देश को हेल्दी रखने का काम हमारे सभी देश के डॉक्टर्स ने किया है। उन सभी डॉक्टर्स को मैं यहाँ सलाम करना चाहूंगा, उनको मैं उनके दीर्घायु के लिए सलाम करना चाहूंगा, उनके काम को सलाम करना चाहूंगा। और इसी बात के साथ, इस आगाज के साथ कि जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, मैडम आपके लिए वर्ड है कि जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, लेकिन जो चट्टानों से टकरा है वो इस देश के डॉक्टर्स है। इस प्रकार की भूमिका हमने आज इस सभागार से व्यक्त करनी चाहिए। मैं कोरोना के काल में हमें पता है कि क्या वेदना, क्या पीड़ा हमें हुई है, लेकिन उस पीड़ा को भी झेलकर देश में सजगता के साथ भारत माता को सलाम करने की भूमिका भी हमारी रही है। इसी भूमिका को वंदन करते हैं, इस पात्र को हम वंदन करते हैं और आप सभी का सम्मान इस राष्ट्रीयता के आंदोलन को जगाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि एक जंगल में जब आग लगी थी, आग लगने के बाद सब जब जंगल के जो प्राणी है वो एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए। बहुत अच्छी स्टोरी डॉक्टर्स के लिए है कि जंगल में जब आग लगी थी तब सभी प्राणी एकत्र हो गए, एक साथ आ गए, कहने लगे कि आग लग गई, कौन बुझाएगा। सिंह आया, जब बाघ आया, बाघ कहने लगा कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मैं कैसे इस आग को बुझाऊं। निगेटिव मेंटालिटी के साथ वो चला गया। जब हाथी आया, हाथी कहने लगा कि मेरा शरीर बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। मैं इस कहानी को
फिर शॉर्ट करता हूँ, एक छोटी सी गिलहरी आती है, कहती है कि तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सब निकम्मे हो। मैं अपने चोंच से पानी उठाऊंगी और उस आग पर डालूंगी, और जब ये सब प्राणी उसके ऊपर हंसने लगे कि गिलहरी तू ये क्या बेवकूफ जैसा काम कर रही है, तो गिलहरी का समर्पक उत्तर है, वो डॉक्टर के लिए मैं समर्पित कर रहा हूं कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जब जब इतिहास दोहराया जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में मेरा नाम आएगा, आग बुझाने वाले में मेरा नाम आएगा। मैं सारे डॉक्टर्स को वंदन करता हूं, मैं सारी महिलाओं को भी जहां बड़े तादाद में उपस्थित है, तालियां बजा के स्वागत कर रही है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। अगर महिला नहीं होती देश की प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति पद पर, अगर सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भिडेवाड़ा में 1848 में पहली महिलाओं की स्कूल शुरू नहीं करती, तो मैं महिलाओं को बताना चाहता हूं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, चाहे वो देश की राष्ट्रपति क्यों ना हो, पुणे के भिडेवाड़ा में इफ द फर्स्ट स्कूल वाज नॉट स्टार्टेड बाय सावित्रीबाई फुले, तो आज देश में महिला विकास के आंदोलन की शुरू नहीं हो सकती। जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे संविधान लिखने वाले आदमी ने जब पार्लियामेंट में डिबेट किया और हिंदू कोड बिल रखा था, हिंदू कोड बिल किस लिए रखा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के स्वतंत्रता के लिए रखा था, महिलाओं के फ्रीडम के लिए रखा था, चाहे किस कास्ट की, किस जेंडर की हो, उस महिला के लिए मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन वो बिल गिरा तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी पहली बार जिंदगी में रोया है, क्योंकि महिलाओं के स्वतंत्रता के आंदोलन की शुरुआत करने की जो ताकत है वही खत्म हो गई थी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को सीख देने वाली उस माता जिजाऊ को वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि शिवाजी महाराज को अगर किसने बनाया तो माता जिजाऊ ने बनाया है। मुगलों के साम्राज्य से बचाने का काम हमें किया है, मैं इसी तरह हमें देश को बचाने का काम, आरोग्य वर्धन करने का काम इन सभी डॉक्टर्स ने किया है। मैं उनको भी वंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा, और इस देश के परिसीमा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के सम्मान का आगाज यहाँ करता हूँ, इनके हाथों से करना चाहूंगा। वे इस सम्मान स्वीकार करें, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। इसके पश्चात मैं डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी, गोल्ड लेजर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनको भी ससम्मान मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा। आदरणीय जज साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने हाथों से हमारे इस राष्ट्रीयता के आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों का, तो मेरे लिए तो महापुरुष डॉक्टर ही है, क्योंकि डॉक्टर के बगैर कोई पुरुष ही नहीं हो सकता है या महिला नहीं हो सकती है। मैं ऐसे डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी का यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ, उनका भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ। उसके पश्चात डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, जो कि सीनियर ऑनकोर सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल, जिनको हमने सुना है। तपस्विनी यह नाम जो है संस्कृत सिद्धा में बहुत तपस्या के साथ लिया जाता है, और आपने उस तपस्या को सार्थ किया है, और महिला के रूप में आप देश की इस सजगता के साथ, परिवार के साथ आप आरोग्य संवर्धन का काम भी देश का कर रही है। जोरदार तालियों से तपस्विनी जी का भी स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर नीलम सिंह जी, जो कि डेंटल सर्जन है, उन्होंने बात की थी यहाँ हमारे वेलफेयर के लिए, विकास के लिए, और जो वेलफेयर और विकास की बात करता है, जो अपने लिए नहीं सोचता दूसरों के लिए सोचता है, वो परमार्थ होता है। ऐसे परमार्थ मैं डॉक्टर का यहाँ सम्मान करना चाहूंगा। मैं मूवमेंट और सर्टिफिकेट देकर तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर नीलम जी का। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. पाटिल इस मंच पर खुद उपस्थित है, डॉक्टर पाटिल जी का यहाँ स्वागत और सम्मान और सत्कार करें, ऐसे आपसे अनुरोध करता हूँ। और जोरदार तालियां जज साहब का यहाँ हम करेंगे। सर हमारे, मैं तो प्रोफेशन में सर डॉक्टर को पहले पूछता हूँ, क्योंकि हमारे घर में जज है जस्टिस बी.आर. गवई साहब, अंकल, सो दैट्स व्हाई मैं डॉक्टर साहब के रूप में आपका यहाँ सम्मान करना चाहूंगा। न्याय देवता के रूप में आप काम कर रहे हैं, उनका भी आपको सम्मानित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से डॉक्टर अंकल जी का यहाँ स्वागत कीजिएगा, ऐसा अनुरोध करूंगा। बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, उनको भी मैं यहाँ नमन और धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा आदर सम्मान के साथ, वो भी प्रिंसिपल है सैनिक स्कूल में, देश के शहीदों के लिए जो काम करता है उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं ममता जी को यहाँ चंडीगढ़ से खास बुलाया हूँ, जिन्हें ईश्वर का अंश माना जाता है, डिसेबल बच्चे, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक चैलेंज के साथ ममता जी इस चैलेंज को स्वीकार कर रही है और महिला के रूप में वो संघर्ष कर रही है। उनका भी सम्मान हम यहाँ पे अवार्ड देकर, उनको स्मृति चिन्ह देकर मैं करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से ममता शर्मा जी, जो चंडीगढ़ से खास पधारी है, उनका मैं करना चाहूंगा, जो कि अपने आप में एक नया इतिहास लेकर हम चलेंगे। आजादी के 75 वर्ष में मैं सीए ध्रुव फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, उनका भी यहाँ स्वागत मैं करना चाहूंगा। मैं ध्रुव अग्रवाल जी का भी यहाँ मैं जज साहब से अनुरोध करूंगा, कमिश्नर साहब से, कि उनका सम्मान यहाँ करे। तालियों से ध्रुव जी का स्वागत कीजिएगा। बड़े जज्बे के साथ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, बड़ी डिग्री उन्होंने लेके रखी है, लेकिन समाज के प्रति सर्वदा के साथ, देखो हम शतरंजी उठाने के लिए भी कभी पीछे नहीं उठते।
चाहे हम फाउंडर है, चाहे मैं प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, नेशनल अवार्डी और राष्ट्रपति से सम्मानित, तो ये अभी कम देखेंगे नहीं। लेकिन जहां जहां समाज के विकास की बात होगी, समाज के विकास को आगे ले जाने की बात होगी, वहाँ एक सर्वसामान्य स्वयंसेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करने की भूमिका हम सब लोग करते हैं। और इसी भूमिका को सामने लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर धनंजय जी को मैं मंच पर यहाँ बुलाना चाहूंगा। अपनी बात रखी थी, उस संघर्ष को भी हम यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर धनंजय जी का भी यहाँ स्वागत और सम्मान करना चाहूंगा। और स्वागत की इस कड़ी में आप सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए, देखो खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख, खुद के लिए मरा तो क्या मरा, जरा दूसरों के लिए मर के देख। अमर हो जाएगा तू, तेरा नाम याद रखेगा, इतिहास दोहराएगा तू, तेरा परिवार याद रखेगा। देश के लिए मर, देश के लिए जी, देश के लिए अपना सम्मान याद रख। ऐसी भूमिका हम रखते हैं और इसी विश्वास के साथ हम सब लोग एक सोचते हैं कि नई विचारधारा के साथ, नए आशय के साथ जिस तरह से हमें ले जाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित है और हम सभी लोग उस तरह से प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास हमें देश की विकास के लिए, देश के सम्मान के लिए आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते और आदरणीय जिनका यहाँ गायत्री फाउंडेशन है, उनके माध्यम से मैं यहाँ करना चाहूंगा कि जो अपनी विचारधारा को साथ में लेकर नया कुछ करने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और इसी करता है, मैं चौधरी साहब का सपरिवार यहाँ, मैं मैडम को भी बुलाना चाहूंगा। दोनों का जोड़ा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। इतने साल भी आप लोग यंग लग रहे हैं, तो आप ये जोड़ी ऐसे ही बरकरार रखें और भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसा मैं यहाँ से आशावाद व्यक्त करता हूँ। कितनी ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण खुद यहाँ बड़े दौरे से यहाँ पधारे हैं और माँ सीता जी यहाँ सम्मान स्वीकार रही है। यही आशावाद होता है कि आप सभी के साथ और सभी विचार के साथ एक अच्छा हंसमुख चेहरे के साथ तालियों से फिर से एक बार जोड़ी का स्वागत कीजिएगा। ये सर रब ने बना दी जोड़ी है, तो आप बना के रखिएगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है, इन सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ में है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम और वंदन भी करते हैं। आज पहली बार है डॉक्टर के.जी. चौधरी और मैडम चौधरी, 25 साल से हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, मिलते हैं, और आज पहली बार डॉक्टर्स के दीवार में आया है, तो हम सब बहुत खुश है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप भाई आए, हम लोगों को सबको आशीर्वाद किया है। वैसे डॉक्टर से आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद सर, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात, अरे मैं तो आपके साथ ही है सर। इसके पश्चात जो डॉक्टर, इस आदमी को कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ खड़े होते हैं। देखो सरलता के साथ, एक आत्मीयता के साथ प्रोग्राम को सहाय करना। तालियों से स्वागत कीजिएगा पहले तो उनका। परिचय में बताया गया कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहला अगर कदम रखा है, तो मुझे, मैं जानता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ, मैं भी डॉक्टर ने, लेकिन पीएचडी जरूर हो सोशल साइंसेस में। मैं जानता हूँ कि जब जब ऑटोमोबाइल का नाम लिया जाता है तो मारुति उद्योग समुदाय का नाम लिया जाता है। राजीव गांधी जी पहले राइडर थे जिन्होंने मारुति का ट्रायल लिया था, तो वह सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। ऐसे अनुभव व्यक्ति का भी हमें इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। सर हम आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ताली से स्वागत कीजिएगा हमारे आज के सम्मानीय अतिथि का। चाहूंगा मैं ध्रुव अग्रवाल जी, आदरणीय जज साहब से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत और सम्मान करें और उनको यहाँ उनका भी एक मोरल बढ़ाने के लिए। देखो आज की दुनिया में, फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैट की दुनिया में, हम किसी को थैंक यू कहने के लिए भी बहुत बड़ा मन रखते हैं, तो ये तो बड़ा सम्मान आपके लिए। डॉक्टर धर्मवीर जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। भूमिका लेकर मैं हमारे आज के डॉक्टर्स का सम्मान और उनका सत्कार यहाँ करना चाहते हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अच्छी अच्छाई के साथ करने के लिए आगे बढ़े हैं। जोरदार तालियां हमारे यूथ डॉक्टर के लिए, क्योंकि हमारे ऐसे युवाओं के माध्यम से ही हम इस देश की पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे और विकास के आयाम को बढ़ाना चाहेंगे, ऐसा प्रयास हो। अब जो कि एक ऐसे तबके के साथ काम करने वाले ये शख्स है कि जिनके लिए कोई वॉइस नहीं है, वॉइसलेस पीपल के लिए, जैसे घूमने वाले घुमंतु लोग होते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन ये आदमी उन तक एजुकेशन पहुंचाने का काम, मुख्य धारा पहुंचाने का काम कर रहा है। तालियों से स्वागत कीजिएगा आदरणीय विभीषण यादव जी का। और आपके माध्यम से जो सेवा घर में होती है, उसी सेवा का भाव रखकर आप यह भी कार्य कर रही है, उसके लिए आपको मैं तालियों से स्वागत कीजिएगा। ऐसे मालूम हस्तियों का, क्योंकि बाहेट मैडम जब हमारे लिंगराजू साहब नहीं रहे, आई वॉज वेरी शॉक्ड, ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारी आंध्रा भवन की जो मेडिकल ऑफिसर है उनका भी स्वागत करें। और उन्होंने भी कोविड में, मैं देखा हूँ, बहुत अच्छी सेवा देने का प्रयास किया है, लोगों तक अपनी सेवाएं दी है। उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
सर आशीर्वाद चाहिए डॉक्टर पिंकी चंद्र डॉक्टर ग्रेस जी आइए, आप मंच पर आइएगा। एपी भवन में हमारे साथ काम करने वाले हमारे डॉक्टर ग्रेस साहब, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। आज के इस समारोह में उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। अवार्ड देंगे और आगे मौका दीजिएगा। मैं मैडम का स्वागत करना चाहूंगा। मैं बात कर रहा था महिला विकास और महिला उन्नति की ओर। ऐसे डॉक्टर्स को भी हम यहाँ सम्मानित करेंगे और उस विचारधारा को भी, जो खूब लड़ी मतदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सभी यहाँ हमारी झांसी की रानियां बैठी है, ऐसा मैं यहाँ अपेक्षित करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर हमारे डॉक्टर साहब का यहाँ स्वागत भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। मैडम, रोक सके ऐसी कोई ताकत आज पैदा नहीं हुई है, रोक सके ऐसी कोई ताकत आज पैदा नहीं हुई है। भारत माँ को वंदन के लिए किसी की कोई औकात पैदा नहीं हुई है। देश में नाम रहेगा भारत का सर्वोच्च स्थान पर, देश में नाम रहेगा भारत का सर्वोच्च स्थान पर। ऐसे तिरंगे की शान में हम जान न्यौछावर करते हैं, ऐसे तिरंगे की शान में हम अपनी जान न्यौछावर करते हैं, क्योंकि देश के लिए जज्बा जीने का हमारे साथ है। मैं डॉक्टर हमारे आज के इस कार्यक्रम में घर, भले वो कर्नाटक हो, केरला हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं को भी इन्होंने बहुत हेल्प किया है। इस संदर्भ में इसको हम सम्मान करना। बड़ी विधायक विचारधारा के साथ सुब्बाराव जी ने जिस विपरीत अवस्था के साथ हम गुजरे हैं, ऐसी अवस्था को भी काम करने का प्रयास किया है। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर सुब्बाराव जी का। प्रमाण पत्र देकर मैं इसके बाद इस मंच पर नेहा जी को बुलाना चाहूंगा। मैं नेहा जी मंच पर आए। योगा डे का सेलिब्रेशन इन सभी लोगों ने आयोजन किया था। मैं अर्चना भारती जी को भी यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ, फिर भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ से ले जाए। उसके बाद मैं सरिता जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। सरिता जी, आप मंच पे आइए। उसके बाद सुशीला जी रेडी रहेंगी। दीपमाला जी, आप अपना प्रमाण पत्र यहाँ से ले जाएंगे। तालियां क्यों नहीं बज रही? आप उठ गए तो तालियां काम हो गई है। अपने कलीग के लिए आप तालियां कम बजा रहे हैं। पूनम जी भी तैयार रहेंगे। उसके बाद पहले मैं दीपमाला जी को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ। उनके हाथों इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन का यशस्वी आयोजन इन लोगों ने किया था। मैं रेडी मैडम के बाद करता था, ठीक, कोई बात नहीं। माया पाठक मैडम, माया पाठक जी, उसके बाद सुमन रावत मैडम रेडी रहेंगी। घर में तो मैडम ही सेक्रेटरी है, सब चिंता मत कीजिएगा। मैं सुमन रावत जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। आइए। मैं उजाला गुप्ता जी मैडम को यहाँ बुलाना चाहूंगा। अनीता सरकार मैडम मंच पर आए। अनीता सरकार मैडम उपस्थित है। उसके बाद मैं प्रियंका भारती मैडम से, आपका डबल हो गया, ठीक है। प्रियंका डॉक्टर, हाँ आप भी, आपको डबल सम्मानित कर रहे हैं। आलोक मिश्रा जी हैं, आइए। यस आइए। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पेशल उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी सर्टिफिकेट ले लो। आइए, एक वहां से इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कौन सा ऐसा देश है जहाँ ऐसे आलोक जी हमारे बीच में। इस संदर्भ में डॉक्टर आलोक जी 2 शब्द बात करने के हम रिक्वेस्ट करेंगे। ये अग्रवाल जी ध्रुव तारे की तरह हैं, जो अपनी दृढ़ता और शक्ति से जो है कुछ ठानते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज करते हैं इस प्रकार से। तो बड़ा रिक्वेस्ट आपका सुबह था कि आप आए। हमने कहा 5 o'clock के पहले निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप ऐसा कार्यक्रम, ऐसे अवसर पर सम्मान के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं,
तो आप सभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे कार्यक्रम को एक सम्मान्य सोचा है डॉक्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो एक समाज में डॉक्टर्स की महत्ता है कोविड के दौरान बहुत गहरे से महसूस सभी ने किया। तो ये आत्मीय संबंध समाज और चिकित्सा के बीच में जो है ये अन्योन्यासी संबंध है, मतलब एक दूसरे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कुछ नहीं बट आपके द्वारा मिला सम्मान जो है उनके लिए बहुत आत्मबल को प्रदान करता है। तो आप ऐसे अपने सम्मान को बनाए रखें। आपके जो भी व्यक्तिगत डॉक्टर्स हैं जो सके हैं और ऐसे चिकित्सक जो लोग इसमें शामिल हुए हैं और जिनको आपने आज सम्मानित किया है। और मुझे लगता है कि ये सम्मान शायद उन भावनाओं की व्यक्ति का कहीं माध्यम बनने के लिए सिर्फ है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बहुत से चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने जीवन को भी इस कोरोना में खोया है। तो मैं चाहूँगा कि उनके दिवस पर जो नहीं है उनको भी जरूर 1 मिनट का मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि उन्हें दें जिन्होंने इस कोविड के दौरान में इस डॉक्टर्स ने अपने जीवन को इस पर किया है। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए उनके लिए आप खड़े होकर के बट प्रधान हे सरनेम इज इन महाराष्ट्र. एक लोग उधर మధ్యలో వెళ్ళి ఈ పక్కన ముందు नंबर वही जो हमने बोला उनको मैं टेक्स्ट करती हूँ, सारे लोग जानते हैं लेना ऊपर से लगना चाहिए नीचे से लगा के नंबर नहीं तो आप एक हाँ जी 50
So now when I'm working independently, I'm doing it just like math Dr. Adinarayana. सर जी, आप यहाँ पर आज आदि लीला फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था, अवार्ड फंक्शन जो डॉक्टर्स को दिया गया, तो इसलिए जो और डॉक्टर बच जाते हैं सर पूरे हिंदुस्तान के, उन डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है ये सम्मान सिंबॉलिक रूप पे है। सिंबॉलिक मतलब किसी को सम्मानित किया, तो जैसे आप किसी मूर्ति प्रतिमा पर आप मार्पण करते हैं, तो गांधी की जहाँ सारी मूर्तियाँ सभी को अर्पण जाता है वो, तो ये लोगों का भाव है। और मुझे लगता है कि ये डॉक्टर्स दिवस मनाने का जो वो है, ये हर दिन एक धन्यवाद ज्ञापित करने का वो दिन है, और शायद ये विशेष दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन जो भी आपके डॉक्टर हैं उन्हें आपको धन्यवाद करना चाहिए, जिससे उनके भी सेवा भाव ज़्यादा बढ़े। मेरा सिर्फ यही संदेश है कि आप अपने सम्मान को बनाए रखें, और डॉक्टर्स भी अपने उस अभिमान को बनाए रखें जो परिपत्र है ना। हमें डॉक्टर बनने पे जो होता है वो जो सेवा का भाव है वो रहे, तो उसी से वो बना रहेगा।